Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So, a lot of students might not have started their prep, right? If you are among one, you can watch this video, but if you have already started the prep, then this video might not be for you. So, don't waste your time and go and study, right? But if you haven't started your prep, right? Honestly, I believe that there are a lot of students who honestly haven't started their prep or haven't started giving as much time as they should give to their CAT preparation, right? And when they start thinking about the CAT preparation, about the syllabus, about their profile, about the 4 to 5 months left, right? They always have one doubt whether it is worth to put so much efforts, or is it really possible to crack CAT if I start at this point of time, right? So this video is to clarify, this video is to get to an answer whether you should start your prep, and even if you start now, what percentile you should be targeting, and what are the things you need to cover, how your schedule should look like, right? First things first, if you haven't started the prep, I would say you have decent amount of time. I would not say you have enough amount of time, because you don't have any time to waste, right? And there is a question, how much hours should I study daily, right? The simple answer is, if you can give 24 hours daily, go and give 24 hours daily. If you can give 20 hours, give that. If you can give 10 hours, give that. If there is a day where you can just give 30 minutes, give 30 minutes. So now you don't have time to think, you don't have time to waste, you have time to utilize. And the best part of utilization is get maximum out of everything, right? You don't need to worry, you don't need to think about a lot of things. जो आपको अच्छा दिख रहा है वो पकड़ो और उसको करो, right? And now the next question is whether if I start now, right, can I continue it with my job or with my college, right? You can obviously continue, but it can be a lot difficult, it can hit your percentile. तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, या तो जॉब को छोड़ दो, या कॉलेज है तो कॉलेज के काम को थोड़ा कम कर दो, छोड़ दो, जैसे भी आपको सही लगे वैसा करो, राइट? एंड मेन फोकस शुड बी कैट कैट कैट, राइट? कोई गाइडेंस वीडियो नहीं, कोई इधर उधर का सामान नहीं देखना, बिकॉज उससे आपको एक इंटरनल फीलिंग आ जाएगी कि यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, बट जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो वो सब चीज़ें आपको हेल्प नहीं करेगी. तो एग्ज़ाम में क्या हेल्प करेगा? एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा आपकी असली नॉलेज. एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी प्रैक्टिस की है, कितना ज़्यादा आप फैमिलियर हो क्वेश्चन से. तो एग्ज़ाम में वो सब हेल्प करेगा. तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस, हमें नॉलेज पे फोकस करना है. आपको हमेशा हर दिन उठ के यही सोचना है कि मैं आज कुछ भी पढ़ूँ, कुछ भी करूँ, बट मेरा फोकस दो चीज़ों पे होना चाहिए. फर्स्ट इज़ टू गेट as much knowledge as possible, and the second is to implement that knowledge through practice, right? That is the simple funda. Now giving you a very real picture about whether you can do it or not. Believe me, 3 months are enough to crack anything, right? This is my assumption, this is my observed criteria, you can say. बट 3 महीने मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक स्कोर लाने को, बिकॉज आप अब स्टार्ट कर रहे हो, आप ऑब्वियसली 100% तो टारगेट नहीं कर रहे होगे, बट आई एम नॉट सेइंग 100% इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, राइट? बट हमें बेबी स्टेप्स लेने हैं, राइट? आप जहाँ पे भी हो उसका हर पर डे या पर वीक, पर 15 डेज आप 10% इम्प्रूव करते जाओ, राइट? एंड दैट्स हाउ वी विल गो. अगर आप अभी 90 पे हो तो धीरे धीरे इम्प्रूव करो, 99 पे हो तो वैसा इम्प्रूव करो, राइट? बट या थिंग्स आर पॉसिबल. कुछ जनरल टिप्स दे रहा हूँ जो आपको दिमाग में रखनी है. फर्स्ट इज़ टू शट ऑफ योर इंस्टा, टू शट ऑफ योर यूट्यूब, राइट? एंड व्हाट यू कैन डू इज़, इंस्टा तो कंप्लीट बंद कर दो, राइट? व्हाट्सएप भी कंप्लीट बंद कर दो. येस, यू कैन यूज़ टेलीग्राम ग्रुप्स. द सेकंड इज, if you feel that there is a valuable content on the YouTube, create a new ID and subscribe to some valuable channel like ours, right? तो बस उसी को फॉलो करो, उसके अलावा यूट्यूब पे मत देखो, बिकॉज यूट्यूब पे जब आप आते हो तो आपके 2-3 घंटे कैसे चले जाते हैं आपको नहीं पता लगता, राइट? एंड दैट माइट बी वेरी डेंजरस फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? पूरा 1 साल रिपीट करना पड़ेगा यार, कोई मतलब नहीं है. तो हमें अच्छे से प्रेप करनी है. द सेकेंड थिंग इज कंसाइज रिसोर्सेज. ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कीप कंपाइलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम XYZ एरियाज, राइट? बिलीव मी, रिसोर्सेज सबके सिमिलर होते हैं, ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है आप पढ़ के उसको अगले दिन मॉक में बैठोगे तो 99% आ जाएगा, राइट? स्कोर इंप्रूवमेंट आपका प्रैक्टिस और मॉक से ही होगा. तो बेटर है कि रिसोर्सेज पे कम ध्यान दे के एक रिसोर्स को पकड़ो, लिमिटेड रिसोर्स को रखो. जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही अपनी थाली में रखो, राइट? आपको
ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ओवर प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी रखनी है ताकि आपका रियल वैल्यू एडिशन है वो हो पाए। देखो जो 6 मंथ पहले स्टार्ट कर देता है प्रिपेयर करना, है ना, वो थोड़ा थोड़ा टीवी देखता रहता है, खेलने भी जाता है, जिम भी जाता है, ये भी करता है, वो भी करता है, राइट। एंड आपके पास भी उतना ही टाइम है, आप वो सब चीज़ें नहीं करोगे तो दोनों के पास इक्वल टाइम है, राइट। तो आप ऐसे मत सोचना कि आपके पास कम टाइम है, 4 to 5 months इज़ मोर देन इनफ। आई डोंट थिंक यू नीड a lot of time beyond this. You will end up at a very decent percentile after studying completely for 4 to 5 months, right? That is the first thing. Concise resources, shut off your social media. Third thing is ki don't start forming expectations, because see, there is nothing wrong in forming expectations, having a dream. But today's generation, what they do is that as soon as they have something in mind, they start googling about it, they start surfing about it, and then they start finding a lot of stuff about it. उसकी फोटोज़ देखने स्टार्ट कर देते हैं, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया स्टार्ट करना देख लेते हैं, ठीक है। फिर अपना स्कोर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लेते हैं कि मुझे किस स्कोर पे क्या परसेंटेज पे क्या कॉल आएगी, राइट। मेरी एडवाइस फर्स्ट ये रहेगी कि अपना मैक्सिमम दो। अगर आपको 99 पे भी कॉल आएगी, राइट, वुड यू टारगेट जस्ट 99? नो, you will obviously target much more than 99, right? If you know that your call would come at 99.9 plus, right, and you feel that you can't score that much, would you stop studying? No, right? जब हर चीज़ का आंसर नो है, मतलब एट द एंड आपको पढ़ना ही है, चाहे आपका कॉल आए चाहे नहीं आए, चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, तो फिर तो पढ़ो ही ना। अभी क्यों सपने देख रहे हो, राइट? योर ओनली वर्क इज़ टू अपीयर फॉर द कैट एंड देन अपीयर फॉर द GDPI। कॉल देना, शॉर्टलिस्ट देना, क्राइटेरिया डिसाइड करना, वो कॉलेज का काम है, उस पर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको कॉलेज बुलाएगा तब चले जाना, जब नहीं बुलाएगा तो मत जाना, राइट। अभी आपको IIMs कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अभी आप नहीं पढ़ रहे, देन आप पछताओगे। एंड बिलीव मी, हाँ, ये वीडियो देखने वाले 50% बच्चे बहुत अच्छा कॉलेज ले भी लेंगे, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर 50% जो मुझे डेंजर में लग रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि वो कहीं उलझे हुए हैं, कहीं गलत काम में उलझे हुए हैं, कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं फालतू के सपने सजा रहे हैं। बिलीव मी, ठीक है, सपने सजाओ, वो अगर आपको मोटिवेट कर रहा है तब। फालतू देखने से, फालतू अपना एज्यूम करने से कुछ नहीं होगा, उससे बेटर है पढ़ो। और काफ़ी लोग सोच रहे हैं यार मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, मुझे 25 मिनट लग रहे हैं सेट में, 30 मिनट लग रहे हैं, देन दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट, राइट। बिकॉज नाउ यू नो दैट यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज एंड नाउ यू हैव टू ओवरकम। बहुत लोग तो ऐसे जिनको यही नहीं पता उनको सेट में कितना टाइम लग रहा है, राइट, वो इंप्रूव कैसे करेंगे। इफ़ यू नो वेयर यू आर लैकिंग, राइट, तो आपको पता है ना आपको कहाँ पहुँचना है, आपका गोल क्या है, उसको बहुत छोटे 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 स्टेप से इम्प्रूव कर सकते हो आप। वीकली टारगेट बनाओ, देयर आर 5 months लेफ्ट, 4 weeks, तो 20 टोटल वीक्स यू हैव, एंड आई बिलीव 20 weeks आर मोर देन इनफ, राइट। why I am making this video, why I am not teaching you at this point of time, because I believe कि इस मोमेंट पे आपको थोड़ा सा रियलाइज़ करा सकता हूँ मैं, अगर करा पाऊँ तो, क्योंकि इसके बाद जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी एंड एवरेज स्टूडेंट्स के लिए 2-3 महीने पढ़ के कैट क्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड देर इज़ वन बेस्ट थिंग अबाउट द कैट, राइट, you don't need to worry about any other entrance exam if you clear the CAT, right, because along with the CAT you will also be getting prepared for the SNAP, for the ZAT, and once you crack the CAT you will receive calls from a lot of IIMs unlike SNAP or unlike ZAT, right, that is the best thing, right। and और उसके बाद देखो जो आपकी प्रोफाइल है, राइट, हर साल हर भी स्कूल में IIM अहमदाबाद में भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं होगी मे बी, राइट, या उनका गैप ईयर होगा, या हर के पास कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव्स होते हैं, राइट। दोज थिंग्स कैन बी टैकल्ड, कैन बी इम्प्रूव्ड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द GDPI इन December एंड January, सो यू डोंट नीड टू टेक टेंशन अबाउट दैट। अगर आपके मन में चल रहा है कि यार उस सब से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके टेंशन मत लो। The motive of this video is to only make you realize that you have potential, that you have time, you have resources, and अगर resources नहीं भी हैं तो 30, 40, 50 हज़ार एक बार स्पेंड कर दो, कर सकते हो तो, बिकॉज इसका रिटर्न आपको पूरी लाइफ मिल सकता है इफ़ यू आर एबल टू क्रैक द कैट, राइट। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, बिकॉज आप MBA का ड्रीम कर रहे हो तो ऑब्वियसली 25-30 lakhs का इन्वेस्टमेंट वैसे भी होने वाला है नेक्स्ट 2 years में, तो उसमें अगर 50,000 और लगा दोगे तो इट वॉन्ट ब्रिंग ए ड्रास्टिक चेंज, राइट। तो दैट इज़ द थिंग फ्रॉम माई साइड, एंड आई वुड हाईली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कैट
irrespective of what your conditions are, irrespective of where you stand today, because अब जो बीत गया उसका तुम कुछ नहीं कर सकते. द ओनली टाइम यू हैव इन हैंड इज़ टुमारो, द 5 months, राइट. गिव योर बेस्ट एंड देन वी विल मीट आफ्टर द रिज़ल्ट. अच्छा आया, बुरा आया, नहीं आया, वो हम बाद में देखेंगे. बट एवरी टाइम, एवरी ईयर दिस थिंग हैपन्स कि काफ़ी अच्छे बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, और काफ़ी जिन्होंने इतना एफर्ट नहीं दिया होता उनको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ जाता है, राइट. तो लास्ट मिनट तक तुम्हें पढ़ना नहीं छोड़ना है, होप नहीं छोड़नी है, राइट. सोशल मीडिया को बंद कर दो. जो चैनल आपको लग रहा है, जो इंस्टाग्राम आपको लग रहा है आपको वैल्यू नहीं दे रहा, उसको ब्लॉक करो, उससे दूर भागो. बिकॉज सी एवरीवन हेयर इज़ with some motive, especially the B school students and the CAT coachings, right. CAT coachings को क्या चाहिए, उनका नेम हर बच्चे को दिखे, हर बच्चे के दिमाग में हो, एंड उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. उनको नहीं परवाह आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको नहीं परवाह आप IMA जा रहे हो नहीं जा रहे हो, बिकॉज एवरी ईयर आपने देखा होगा whom they respect, the people who convert the colleges, right. But what about the ones who fail to convert just because of their pedagogy, just because of their material, right. No one discuss about that. क्योंकि एक अच्छा बच्चा तो अगर उसको गंदा मटेरियल भी देगा वो इनरोल तो रहेगा, बट वो कहीं और से पढ़ लेगा, राइट. तो कोचिंग वाला हमेशा अपना देखेगा उसको कैसे रील को वायरल करना है, कैसे यूट्यूब पे वायरल होना है, और कैसे आपसे पैसे निकालने हैं. बी स्कूल स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, बी स्कूल स्टूडेंट्स को चाहिए फॉलोअर्स. आई डोंट नो वाई, राइट. वो उनको लग रहा है कि फॉलोअर से पता नहीं उनको क्या रिस्पेक्ट मिल रही है, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होता है. बट ठीक है, बी स्कूल स्टूडेंट्स को फॉलोअर चाहिए. वो अपने बी स्कूल के टैग को ऑब्वियसली स्प्रेड करेंगे, उसकी वीडियोस डालेंगे, अपना ज्ञान देंगे, स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाएंगे. तो उनको नहीं पता आप कौन वीडियो देख रहे हैं कौन नहीं. उनको व्यूज़ से मतलब है, उनको लाइक से मतलब है, उनको स्पॉन्सरशिप से मतलब है, और उनको अपनी वायरलिटी पे से मतलब है, राइट. अब आते हो आप लोग. दोनों लोगों ने अपना सोच रखा है, एक सिर्फ आप ही हो जिसने अपना नहीं सोचा. आप लोगों को ये नहीं पता कि ज़िंदगी में करना क्या है, क्यों करना है. अगर आप भी अपना सोच लो कि मुझे क्रैक कैट करना है, तो आप रिसोर्सेज की तरफ भागोगे, वो भी राइट रिसोर्सेज की तरफ, ना कि राइट रील की तरफ, राइट. आप भागोगे IMS के मॉक्स, CL के मॉक्स, एम कैट की तरफ, ना कि फ्री मॉक, फ्री स्ट्रेटजी, हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल, ऑल दो स्टफ, राइट. मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर मेरा भी आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ ब्लॉक मी एंड सेव योर टाइम एंड इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स, राइट. बट आपको जो बंदा अच्छा लग रहा है, ऐसा भी नहीं है, कई लोग ना 10 बंदे पकड़ लेते हैं, उनकी रोज़ वीडियो देखते रहते हैं. यार तुम्हें नहीं देखनी है वीडियो. कैट किंग है एक चैनल, ठीक है, उसको बकवास ही करनी आती है, बकवास के अलावा कुछ नहीं आता, कभी मौका नहीं दिया. एंड जस्ट वन थिंग, आपका कोई भी, आप जहाँ से जो बी स्कूल स्टूडेंट है, जो कैट कोचिंग वाला है या कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, राइट, आप एक बार उनका पिछले 3-4 साल का रिज़ल्ट देखो, उनका खुद का, कि जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वो ओवरऑल कितना स्कोर कर रहे हैं कैट में. वो क्वांट्स में पढ़ा रहे हैं तो क्वांट में कितना स्कोर कर रहे हैं, ओवरऑल क्या स्कोर आ रहा है, उनका टीचिंग मेथड क्या है, राइट. सिर्फ ये उनकी कहा सुनी पे मत जाओ, बिकॉज सामने से आके खुद को गलत कोई नहीं बोलेगा कि यार मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, मेरे पास मत आओ. सब अपने आप को अच्छा ही बोलेंगे. बट इफ़ दे आर नॉट अटेम्प्टिंग द लाइव मॉक, राइट, then how can they expect you to teach कि how to attempt the live mock, right. तो उनको पूछो सर पिछले 3-4 सालों में आपने कोई कैट दिया है, आपने कितना स्कोर किया है कैट में, राइट. एंड इफ़ यू हियर सम एक्सक्यूजेज फ्रॉम देम कि यार मुझे कट ऑफ नहीं बढ़ानी होती, मुझे सेक्शनल नहीं देना होता, मैं बच्चों का भला सोचता हूँ, तो आस्क देम, हैव यू अटेम्प्टेड एनी लाइव मॉक इन द लास्ट 1-2 ईयर, और कैन यू डू इट for us right now, because we want to see how you crack it. And again if they are replying कि नहीं यार टाइम नहीं है, it will be a wastage of time, तो आप समझ जाना कि people are beating around the bush. Same goes with the B school students. Just tell them, sir, okay, I agree that you have scored this much percentile last year, or maybe last year, or maybe few years back, but you are also giving gyan today that you can score 99 percentile by applying this. So just ask them, sir, you know all the stuff, right? You know how to crack this section, you know how to score this section, you know how to do that, Can you just attempt one live mock with us and show how you are doing it, and is it working or not, right? Can you attempt the CAT of this year, right?
And if someone is not attempting the CAT for monetary reason, I am here to pay for them. I am here to pay for that person, right? But if you find someone just beating around the bush, right, please stop following that person, because that person won't have anything except telling you how to score 99 when they themselves are not able to score, right? And believe me, there are some students from the private B schools or from the tier 3 B schools promoting there. I am promoting their B school, but keep your targets very high, right? Then don't believe what they are showing. That is not the true picture of B school, right? Nobody will come and demean their B school, right? So don't believe them. That is my advice. Focus on the IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta top-notch B schools, right? Even if you know that you can't reach that high stage, but have a belief, try to score as much as possible. और सपना देखना है तो बड़ा ही देखो यार, छोटा सपना मत देखो. बड़ा देखोगे तो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, प्रिपरेशन करोगे, मोटिवेशन आएगा और पहुंच भी सकते हो, राइट? दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर सो दैट इट कैन रीच टू द मैक्सिमम पॉसिबल कैंडिडेट्स. दैट इज़ द वन थिंग. सेकेंड थिंग आई वुड से कि पढ़ना स्टार्ट कर दो. एंड if you haven't started yet, just comment starting so that I get to know that yes, you are manifesting that you are starting. And be true to yourself. Thank you and have a very happy day.